छोड़ के मून का ऑर्बिट में जाता है। तो पहले वो अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाता है इधर से, उसके बाद फिर एक पॉइंट में आके वो रुक जाता है और उसको पेरिजी बोलते हैं। वो पेरिजी में आके इतना अपनी स्पीड को बढ़ा देता है कि वो और एक ऑर्बिट लगा देता है। वैसे वो 3 ऑर्बिट लगाने के बाद अपने स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ताकि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के मून का ग्रेविटेशन। फ्यूचर ट्रांसफर This is our science exhibition working model based on the topic space exploration, under which we have made Mangalyaan. Mangalyaan word comes from a Sanskrit language, which means Mars craft vehicle. Mangalyaan was a spacecraft orbiting Mars on 24 September 2014. It was India's first enterprise mission, and it made ISRO the fourth space agency to reach Martian orbit after NASA and the European Space Agency. The Mangalyaan probe lifted off from the Satish Dhawan Space Center at 9 p.m. using a polar satellite PSLV 625. फ्यूचर ट्रांसफर फ्यूचर This is a hydraulic ambulance in which we based on future transformation in which we had made hydraulic ambulance. जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत सारी जगहों पर ट्रैफिक होती है। बट जैसे ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाता है। अगर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगा तो इसकी वजह से बहुत सारे मरीजों की डेथ हो जाती है रास्ते में। क्या कर रहा है? Dreams transform into thoughts, and thoughts result into action. As we all know, after the commencement of the lunar studies and the successful landing of Chandrayaan-3, ISRO has now embarked on a journey to explain and try out the new discoveries of the sun. Let's learn more about this by my teammate. Journey began was space first to observe the sun. कैसे खोलेगा आदित्य L1 सूर्य के रहस्य? Let's have a look at this chart. Aditya L1 mission is India's first solar mission planned by the Indian Space Research Organization (ISRO). The main objective of Aditya L1 is that it will study the particle fluids emanating from the sun and the variations of magnetic fields. However, Let's now look at the rocket propulsion. Good morning, sir. My name is MD Adashawal, and those are my teammates Ansh Kumar and Nishan Jio. And sir, we made a modern ambulance in which the elevating mechanism works. Sir, our main aim is to enhance the patient care, and it is based on elevating mechanism. When there will be a traffic, its body can be raised up and to a certain height and pass front of it. एंड सर क्या होता है ना कि आजकल के समय पर ट्रैफिक देखेंगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उस चीज़ से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है। लेकिन सर यूएस में एचयूएम करके कंपनी है, वो जीप के ऊपर एलिवेटिंग मैकेनिज्म लगा के एक एक्सपेरिमेंट किया। इस पर क्या हुआ ना सर कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली वर्क किया, लेकिन कुछ सालों के बाद वो एम्बुलेंस के ऊपर भी सेम चीज़ वर्क किया जो कि यूएस में है। तो वही चीज़ को इंडिया में लाने के लिए कुछ साल में आने वाला है सर। तो उसी के ऊपर हम लोग एक मिनिएचर मॉडल बनाए जो कि सर ट्रैफिक के समय में कोई भी आदमी लोग की जान बच सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक
इधर भी है, जब इस तरफ से गाड़ी आएगी तो फिर इस तरफ से आने वाली गाड़ी को अलर्ट मिल जाएगा और वो अपने स्पीड को स्लो कर लेगा, जिससे हम एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं। A monorail is a railway system in which the track is consist of single elevated train track or a beam in which the train is either straddle beam or suspended. The track is usually above the ground. The maximum speed of the monorail is 80 km per hour. It was invented by Henry Robinson Palmer. Let's show how it is worked. This is a solar car. The solar cars are the electric cars that uses photovoltaic cells that convert sunlight into electric. It charges the battery of the car or power the car's motor. The car goes 400 kilometers without sunlight. It was invented by William Cobb in year 1955. This is a smart parking. A smart parking is a human strategy, a parking strategy that combines human innovations and technology in an effort to use few resources such as time, spaces, and fuels. It is an overlapping technology. For this, a lot of hydrogen fuel is required, and so that the trucks can be generated. But spacecraft directly from the Earth's gravitational field escapes and goes to the moon's gravitational field. But this is impossible for ISRO's rockets because it doesn't have much efficiency to carry enough fuel which can directly give it a thrust so that it escapes from the Earth's gravitational field. So the scientists have sought out a way by which they increase the velocity of the Short. Just a basic idea how Chandrayaan Vikram lander left the orbit of and reached the orbit of first of all, Chandrayaan was the third mission by India and was successfully launched in 14 July at 2:35 p.m. at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, second man, Andhra Pradesh. Chandrayaan 3 took a very long path, unlike some Chandrayaan 2, which was a direct trajectory path, which made it a very hard and difficult landing. But Chandrayaan 3 took lunar trajectory path as follows. On 15th of July, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मेरी पार्टनर श्रेया ने समझाया कि हार्ड लैंडिंग में क्या होता है। हार्ड लैंडिंग में जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो बहुत ही तेज़ गति से आता है। डिस्टेंस कम होने के साथ उसकी वेलोसिटी कम नहीं होती। तो जब वो इतनी तेज़ वेलोसिटी से आता है तो वो मून की सरफेस पे बहुत ही तेज़ गति से हिट करता है, जिसके चलते वो जो लैंडर होता है वो Today our topic is about wormholes. So wormholes are 4D theoretical concepts which are shortcuts which are like these tunnels which connect two distinct regions in space or even two universes, and that travel us to and help us to travel between two universes within no time. So please explain the creation. If we understand the structure of a wormhole, we'll see that the opening of a wormhole, there must be a strong gravitational force, such as a black hole. A black hole provides such a strong gravitational force that the space-time around it takes the shape of a tunnel. Now, if there would be another black hole on the other side, it would act as a trap than a tunnel. So, we require something which is almost completely opposite of a black hole in every sense. And those things in space are white holes. A white hole is a theoretical concept which is completely opposite of a black hole. For example, the event horizon of a black hole is a point of no exit, whereas the event horizon of a white hole is a point of no entry.
as of 2023, white holes are completely theoretical. And if white holes will exist in the near future, then wormholes will surely exist. So let me give you a visualization about how these wormholes work. Now we can see that this is our planet Earth and we are in the Milky Way galaxy. And near Earth we have got a wormhole. So if we travel using this wormhole, we can already see that there is a different galaxy on the other side. We can see the pathway of our spacecraft through this tunnel. This is that tunnel. So using this wormhole, we have reached the other galaxy.
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनर उसके घर पे नहीं है, ओनर पे कॉल लग जाता है ताकि ओनर इंडिया में कहीं पे भी हो तो उसको पता चल जाए कि उसके घर पे गैस लीक हो रही रोबोट है जिसमें 2 सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि सिर्फ ब्लैक पार्ट को डिटेक्ट करता है और सिर्फ ब्लैक पार्ट पे ही चलता है क्योंकि इसमें ब्लैक कलर फीड किया हुआ है। इसमें दो IR सेंसर है, मोटर है और बैटरीज है और एक IC चिप है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये एक टूल्स रूम है और यहाँ 2 वर्किंग जंक्शंस हैं जहाँ पे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और उन्हें कोई स्पेसिफिक टूल्स चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर वो मैनुअल लेबर के थ्रू जाता है तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अगर हम उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऐसे पार्ट्स लगा दें और इस रोबोट के थ्रू अगर वो ट्रांसपोर्ट किया जाए तो टाइम एफिशिएंट भी होगा और मैनुअल लेबर भी कम होगा। जैसे यहाँ से हम कुछ टूल्स इस पे रखते हैं, टूल्स रूम के टूल्स उस इंजीनियर्स के पास जाएंगे और टूल्स देकर वापस आ जाएंगे। इसको और फर्दर प्रोग्राम किया जा सकता है स्टॉप होने के लिए प्लेसेस पे और ये पाथ हम लोग मार्बल, टाइल्स या किसी भी टेप से बना सकते हैं और अगर इसमें कोडिंग किया जाए तो दूसरे कलर्स का पाथ भी बनाया जा सकता है। ये एक तरह का फायर फाइटिंग रोबोट है जिससे ये आग बुझाएगा। देखिए सर, बाहर कहीं भी अगर बिल्डिंग में आग लगता है तो बाहर से आदमी बुझा लेता है, लेकिन मेन बात तो है कि अंदर कैसे बुझाए। तो उसी को देखकर हम लोग प्रोजेक्ट बनाया। इसमें होगा क्या कि ये जैसे आजू बाजू अगर फायर डिटेक्ट करेगा तुरंत उसे बुझा देगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब क्या हुआ, देखिए सर, ये जैसे ये फायर डिटेक्ट किया तुरंत बुझा देगा। जैसे मैंने पानी नहीं यूनो यूज़ किए, ब्रेडबोर्ड यूज़ किए, एक सर्वो मोटर और 4 गियर मोटर और एक वाटर पंप। ये लोग एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, एलसीएम बताने की 1/3, 1/4, 1/5 काम हो जा रहा है ना। 9 पे 4 + 5 9 है ना। ठीक सर, हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी। तो एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी में हम लोग ये समझाए हैं कि हम लोग का मेन जो फाइंडिंग्स है वो जो आर्यभट्ट का जो अपना फाइंडिंग्स किए थे अपना बुक आर्यभट्ट में उसको एक्सप्लेन किए और हम लोग उनका एक पार्ट दिए हैं कि इक्लिप्स एनालिसिस, कि कैसे वो इक्लिप्स में मैप लगाते थे और कैसे उसका कैलकुलेशन करते थे। तो अपना मेन टॉपिक में आने से पहले हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करके जो आजकल वायरल हुआ है कि ऐसा बोला जा रहा है कि तुलसीदास जी जो कि हनुमान चालीसा लिखे थे, तो वो ऐसा बोला जा रहा है कि वो हनुमान चालीसा का ये 2 लाइन में सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता दिए थे। ये लाइन जुग सहस्र योजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जानु। युग, सहस्त्र, योजन, इन तीनों शब्दों का 2 अर्थ निकलता है, एक मैथमेटिकल, एक न्यूमेरिकल। युग का थ्योरेटिकल अर्थ होता है इससे करीब जाना, जैसे हनुमान जी सूर्य के करीब गए थे। और न्यूमेरिकल होता है एक साइक्लिक पीरियड ऑफ टाइम। युगा का टोटल युग, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, तो टोटल टाइम होता है। सहस्त्र का थ्योरेटिकल मीनिंग है इन्यूमरेबल और संस्कृत में न्यूमेरिकल मीनिंग होता है 1000। योजन का यूज फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस और न्यूमेरिकल 8 माइल्स। जैसे यहाँ हम लोग साइक्लिक पीरियड ऑफ अ यूनिट पढ़े, उसी को अगर हम हिंदू मैथोलॉजी से जोड़े तो 4 भागों में तोड़ सकते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जैसे जैसे
नीचे आते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ ईयर्स घटते रहते हैं। सतयुग में सबसे ज़्यादा, फिर कलयुग सबसे कम कलयुग में। एक डिवाइन ईयर का अर्थ होता है 360 ह्यूमन ईयर्स। जब हम सारी ईयर्स को, वैल्यूज ऑफ ईयर्स को जोड़ते हैं तो एक महायुग बनता है जो 4,32,000 साल के बराबर होता है। जब उसको 360 से डिवाइड करें तो 12,000 डिवाइन ईयर्स बनता है। तो ये जो हम लोग निकाले मैथमेटिकल वैल्यूज़, उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को उसका अप्रॉक्स डिस्टेंस मिलता है। हम लोग को उसका अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाता है, जैसे 96 मिलियन माइल्स। और अगर इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो वो लगभग 153.6 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स आता है। ये अप्रॉक्स इसीलिए आता है क्योंकि जो हम लोग का अर्थ है वो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ना कि सर्कुलर पाथ में। तो आर्यभट्ट उस टाइम पे जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं था, उस टाइम पे इतना एक्यूरेट वैल्यू वो अपना हनुमान चालीसा का एक श्लोक में बता दिया। स्क्वायर पिरामिड है जिसका वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। ये एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। ये इसका हाइट है और ये इसका लेंथ है। एज ये स्क्वायर पिरामिड है तो इसका सारा लेंथ इक्वल होगा। इस स्क्वायर पिरामिड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग स्टेप पिरामिड का यूज़ कर रहे हैं, जिसका एक स्टेप क्यूबॉइड शेप का है और इसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। हाइट सबका सेम है। टोटल हाइट इसका h है, नंबर ऑफ स्टेप्स n है, तो एक का हाइट हो जाएगा h डिवाइडेड बाय n। इसका टोटल लेंथ n है और इसका नंबर ऑफ स्टेप्स n है, तो एक का लेंथ हो जाएगा l बाय n। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है l इंटू बी इंटू एच। l और b इक्वल है, हम लोग लिख सकते हैं l बाय n को होल स्क्वायर इंटू h बाय n। सेकेंड वाला का हो जाएगा 2 इंटू l बाय n होल स्क्वायर इंटू h बाय n। थर्ड का हो जाएगा 3 इंटू l बाय n होल स्क्वायर इंटू h बाय n। इसका टोटल नंबर n है, तो टोटल का हो जाएगा n इंटू l बाय n होल स्क्वायर इंटू h बाय n।